Hello everyone, so this is Divya Chandwani. A warm good evening to all my dear students. I welcome you all on Let's Crack 9th and 10th CBSE. So kids, if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe to it now because this is the best channel if you want to prepare for your 9th or 10th board exams. This is my introduction. My name is Divya. I have done my BTech in electrical engineering. I have more than 2 years of teaching experience. I have mentored many students for NTSC and CBSE board exams, and I'm a faculty in Kota, Rajasthan. So, kids, you all know that today we are going to do third part of Glimpses of India. Okay, so many chapters we have covered in revision series of First Flight. Okay, so today we will complete Glimpses of India part 3, that is a tea from Assam. तो बच्चों आज जो है हम बात करने वाले हैं असम के बारे में। तो आज हम जर्नी करने वाले हैं असम की। राइट, अपनी बातों के थ्रू करेंगे ये जर्नी हम लोग। ओके, तो नाउ किड्स, मेरी लास्ट प्रीवियस 2 क्लासेस में मैंने आपको गोवा की जर्नी करवाई एंड देन उसके बाद हम लोगों ने सेकंड जो स्टोरी थी पार्ट 2 की, उसमें हम लोगों ने कुर्ग की स्टोरी पढ़ी। राइट, सो इन दिस थर्ड पार्ट we are going to discuss about Assam. So chapter's name is A Tea from Assam. तो हम चाय की बात बहुत करने वाले हैं इस वीडियो में, और कहाँ की चाय की? असम की चाय की बात करेंगे। So kids, before starting the class, I would like to share some benefits with you all that you all can easily get when you will subscribe to an academy. First is daily life classes, second is live tests and quizzes, third is structured courses. Okay, that means if you want to prepare for any Olympiad, any exam, you will get a structured and a designed course for it. Okay, next is bacha log unlimited access. That means you will have access to all the educators teaching on this platform. आपके पास multiple educators का access रहेगा. Okay, plus you will get all your PDF notes, plus all your doubts will be solved because fourth lecture of every educator is a dedicated doubt session. Okay kids, clear? चलो, तो ये बच्चों हमारी प्लस की बेहतरीन टीम है. So yes, you have to subscribe to an academy now or in few days because these are the best educators across the India that are going to teach you when you will subscribe to plus. Okay, चलो. So now kids, आप लोग सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो what you have to do is just download the Unacademy learning app. ठीक है, choose the goal that is CBSE class 10 and click on the get subscription button. So it's that easy. Okay, ये बच्चों हमारा ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल चैनल का लिंक है एक्चुअली, जो है Quest 10 CBSE. So just download the Telegram app, type the link in URL, this is the link, okay, and click on join. ठीक है, अब बच्चों अगर आप ये लिंक कॉपी नहीं करना चाहते हैं then what you can do is just download the Telegram app and search Quest 10 CBSE and you will see our channel, that is Let's Crack 9th and 10 CBSE. So just join this channel, you will get the entire information of each and every class that will be conducted on YouTube or on an Academy app. Okay, so now kids come the subscription part. Okay, so now if you want to go for 6 months, 12 months or 24 months or 36 months, okay, try to go for at least 12 months or 24 months because it will be economically quite feasible. ओके, एंड बच्चों इसमें हम आपका पूरा जो कोर्स है वो भी कवर करवा देंगे. राइट, ऑल योर डाउट्स विल बी सॉल्व क्योंकि फोर्थ लेक्चर विल बी ऑफ एवरी एजुकेटर. Fourth lecture will be a dedicated doubt session of every educator. So you don't, please don't waste your time and subscribe to an academy now. So I have one more good thing for all of you that बच्चों अगर आपके ब्रदर सिस्टर्स में से कोई एक 6th 7th में या 8th में है, then I would suggest you kindly go for 8th class subscription. क्यों बोल रही हूँ बच्चों मैं ऐसा? क्योंकि अगर आपका भाई 8th में है, ओके, तो आप 8 से लेकर 12 तक के जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको एक्सेस कर पाओगे. तो वो 8 में तो वो 8 का एक्सेस कर लेगा, आप 10th का एक्सेस कर लेना. अगर आपकी सिस्टर 6th में है तो आप 6th का 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर जो भी है 24 मंथ्स का, तो आप 6 से लेकर 12 तक जितने भी कोर्सेज हैं सबको एक्सेस कर पाओगे. तो इफ यू विल गो फॉर 6 तो उसके ऊपर जितनी भी क्लासेस हैं यू कैन एक्सेस देम. 7th का लोगे तो उसके ऊपर जितनी भी यू कैन एक्सेस देम.
एट्थ का लोगे तो एट्थ के ऊपर जितनी भी है इंक्लूडिंग एट्थ यू कैन एक्सेस ऑल द कोर्सेज। ठीक है, तो अगर आपने सिक्स का कोर्स लिया तो सिक्स से ट्वेल्थ के सीबीएसई के सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? And if you want to go for 10th only, सबका वैसे cost same ही है almost. So even you don't have to pay 15,000 rupees. Just apply my awesome referral code that is Divya10 and you will get an instant discount of 10% and आपको 15,000 की जगह सिर्फ पे करना होगा 13,500 rupees. 25,000 की जगह you only have to pay 22,500 rupees and 32,000 की जगह you only have to pay 28,800 rupees. So all these things will be possible. All these benefits you will get at your home only when you will use this awesome referral code that is Divya10 and get an instant discount of 10%. Okay, chalo. So now let's quickly start our chapter, a tea from Assam. Right. So you all can see this. You all can see in this picture how beautiful it is looking, right? और आप लोग देख सकते होंगे कि कैसे यहाँ पे जो टी प्लकर्स है, टी प्लकर्स कौन है? यू कैन सी दीज women over here. They are plucking the leaves of the tea. They are plucking the leaves tea and they are putting it in the basket that is on their back. Okay, so yes बच्चों, they are known as tea pluckers. तो जो असम है बच्चों वो अपनी चाय के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. इट्स रियली फेमस फॉर इट्स टी. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम असम की टी के बारे में बात करेंगे और दो इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हम उनकी बात करने वाले हैं. सो वन इज राजवीर एंड द अदर वन इज प्रांजल. तो ये सबसे दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के जिनके बारे में आपको जानना चाहिए. सो राजवीर एंड प्रांजल आर टू वेरी गुड फ्रेंड्स. ओके, और जो प्रांजल है बच्चों उसने क्या करा है, राजवीर को अपने घर चलने के लिए इनवाइट किया है. सो प्रांजल लिव्स इन असम एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड राजवीर. ओके, उसने अपने फ्रेंड राजवीर को इनवाइट किया है कि राजवीर भी उसके साथ चले असम और वहाँ की जो ब्यूटी है और सब कुछ एक्सप्लोर करे. सो प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग समर वेकेशंस. ओके, ये वैसे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ उनकी समर वेकेशंस लगी हैं. सो देयरफॉर प्रांजल एंड राजवीर दे बोथ आर गोइंग टू असम. ओके, क्लियर? ये इनका हो गया brief introduction. Now let's move ahead and let's understand this chapter. Okay, so now kids, the lesson is about two friends. One is Pranjal and the other one is Rajveer, who are traveling to Pranjal's hometown Assam for the summer vacation. So as I've just told you, ये दोनों बच्चों बहुत ही अच्छे स्कूल फ्रेंड्स हैं, राइट? और इनकी क्योंकि स्कूल की छुट्टियां लगी थी इसलिए प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया that please come with me to Assam and we will have a quality time there and we will spend our summer vacations in Assam. Okay, so now we all know Assam is known as the tea country. वहाँ पे वहाँ की जो टी है, वहाँ के जो टी का अरोमा है, वहाँ की जो टी है बच्चों वो बहुत ज्यादा फेमस है. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही फेमस है. सो असम इज ऑल्सो नोन एज द टी कंट्री. ओके, इट हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा प्लांटेशन यहाँ पे किसका है? टी का. लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है पूरे वर्ल्ड का असम में. Okay, largest concentration of plantations is in Assam in the entire world. Okay, so now during their journey they discuss about the various legends that are known to have discovered tea. अब प्रांजल और राजवीर पूरे रास्ते क्या डिस्कस कर रहे थे? They were discussing कि किसने टी को क्या बोलते हैं डिस्कवर किया था. So they were discussing all such things. Now obviously Pranjal was not that excited because he used to live in Assam and उसने ये सब चीजें बचपन से देखी होती हैं. So it was not that big thing for him, but for Rajveer it was a really really big thing क्योंकि वो पहली बार असम जा रहा था और वो बहुत सारा होमवर्क करके आया था. वो असम के बारे में और टी के बारे में काफी स्टडी करके आया था. ठीक है, क्लियर किड्स यहाँ तक? चलो, तो नाउ किड्स ऑब्वियसली प्रांजल वाज नॉट दैट एक्साइटेड जो कि एक बहुत ही नॉर्मल बात है. ठीक है, क्योंकि वो वहां का रहने वाला था. ओके, सो नाउ लेट्स सी
तो बच्चों प्रांजल और राजवीर कहाँ पढ़ते थे? प्रांजल और राजवीर साथ में दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते थे, एंड नाउ दे वर गोइंग टू असम फॉर देयर समर वेकेशंस. वी ऑल नो असम इज फेमस एज टी country. Okay, the story tells us about the popularity of tea as beverage. अब ये जो कहानी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये हमें क्या बताएगा कि अब जो है टी जो है एज अ बेवरेज पी जाती है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में, स्पेशली इंडिया में. तो वो जो कहानी है कि वो मेडिसिन से एज अ बेवरेज कैसे यूज की जाने लगी, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. ओके, चलो, so let's start now. Story revolves around the infamous beverage tea, telling us more about its history and discovery. Okay, अब ये चालू कहाँ से होता है? It begins from the scene where two friends Pranjal and Rajveer are all set to go to Assam. अब वो दोनों ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और बात चालू कैसे होती है? When a tea vendor asks them, when a tea vendor asks them if they would like to have some freshly made tea, और तभी एक चाय वाला आता है, चाय 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 करता हुआ, और क्या बोलता है प्रांजल और राजवीर से कि क्या आप गर्मा गर्म गर्म ताजी ताजी चाय पीना चाहेंगे? सो दे बाय 2 cups, उन्होंने 2 cups लिए, एंड किड्स almost every other person in their compartment was already drinking their tea, so they also purchased 2 cups and they also joined other people in their compartment. Okay, so from there onwards, the journey begins, and Pranjal starts reading his detective book while Rajveer decides to enjoy the scenic beauty. Okay, सो नाउ बच्चों आपकी जैसे जैसे जर्नी चालू होती है, तो प्रांजल तो क्या है अपनी डिटेक्टिव बुक में घुस जाता है, बिकॉज ही वॉज अ कीन रीडर, और उसे ये सब बुक्स बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगती थी. ओके, सो ही वॉज रियली इंटरेस्टेड इन रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक. लेकिन राजवीर के लिए क्योंकि वो सब कुछ नया था, वो आसाम पहली बार जा रहा था, ठीक है, सो देयर फोर ही वॉज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इन रीडिंग और समथिंग, ही वॉज जस्ट enjoying the scenic beauty. जो बाहर के नज़ारे थे, जो बाहर की खूबसूरती थी, उसको वो एंजॉय करने में बिजी था, क्योंकि उसने ये सब चीजें पहले देखी भी नहीं थी, एंड वो बहुत सारा होमवर्क भी करके आया था. दैट मीन्स वो बहुत सारी चीजें पढ़ के आया था आसाम के बारे में. ओके, चलो, सो दे बोथ गॉट बिजी इन देयर own things. Okay, just give me a second, kids. I would like to tell you one more thing, so just give me a second for that. Okay, perfect. Chalo. So yes, Pranjal was reading his detective books and Rajveer was concentrating outside. He was enjoying the scenic beauty, the beautiful uh, beauty of the nature. So now there was soft green paddy fields and they were followed by tea bushes. अब वहां पे दूर दूर तक अगर उसकी नजर जा रही थी बाहर, तो उसे सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा था? He could only see paddy fields outside his train. ग्रीन ग्रीन उसको सॉफ्ट पैडी फील्ड्स देखने को मिल रही थी, एंड उनके पीछे क्या था बच्चों? दे वर फॉलोड बाय टी बुशेस. सिर्फ और सिर्फ टी टी प्लांट्स थे वहां पे. पैडी फील्ड्स क्या होती है बच्चों? जो हम यूजुअली देखते हैं ना, वी कैन सी वो येलो ग्रीन कलर की जो देखने को मिलती है हम लोग को ट्रेन में, दैट इज नोन एज पैडी फील्ड. ठीक है, अ पैडी फील्ड इज अ फ्लडेड फील्ड ऑफ एरेबल लैंड. इट इज यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक क्रॉप, स्पेशली राइस एंड टैरो. तो उसको सिर्फ और सिर्फ पैडी फील्ड्स देखने को मिल रही थी, और उनके पीछे क्या था? बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ टी के प्लांट्स थे. तो ये तो क्या है बच्चों? हमारा बाहर का नजारे की हम बात कर रहे हैं. बट नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि कैसे टी डिस्कवर हुई थी, क्या क्या स्टोरीज हैं जो वर्ल्ड में फेमस है, दैट आई विल टेल यू इन दिस चैप्टर. So stay tuned with me. Okay, so Rajveer is very excited on seeing such large plantations of tea, but Pranjal is unable to match the same level because he was born and brought up in Assam. Okay, so as I've explained you, Rajveer बहुत excited था वो सब देख के, लेकिन प्रांजल इतना कुछ excited नहीं था. क्यों? Because that was quite natural for him, क्योंकि वो ये सब चीजें बचपन से देख रहा था, and he was born and brought up in Assam, तो उसके लिए वो सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी. Okay, visiting there for the first time, Rajveer did a lot of study about how tea was discovered, and it dates back to 2700 BC.
2700 बिफोर क्राइस्ट। तो अब हम लोग बहुत टाइम पहले की बात करेंगे। तो ये स्टोरी कौन बता रहा है? ये स्टोरी बता रहा है राजवीर, क्योंकि वो टी के बारे में बहुत सारी स्टडी करके आया है। ओके, so now according to what he read, it was first consumed in China. सबसे पहले बच्चों चाय कहाँ पी गई थी? According to जो राजवीर पढ़ के आया था उसके according, it was first consumed in China and then it reached Europe. फिर वो कहाँ पहुंची चाइना के बाद? It reached Europe. It reached Europe in almost 16th century, where it was mostly popular for its medicinal properties. अब यूरोप में बच्चों चाय क्यों फेमस थी? चाय फेमस थी अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। पहले क्या है, चाय एज अ बेवरेज नहीं पी जाती थी। टी वॉज नॉट कंज्यूम्ड एज अ बेवरेज, इट वॉज मोर यूज्ड फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। राइट, चाय को हम आज भी माना जाता है ना, अगर हमारा गला खराब हो उसके अंदर तुलसी लौंग वोंग ये सब डाल के मस्त आप चाय पियो तो गला ठीक हो जाएगा। वैसे ही टी लीव्स में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो अर्लियर इट वाज जस्ट यूज्ड एज अ मेडिसिन इन यूरोप इन 16th century. Is it clear to everyone? So now this is one thing that Rajveer told Pranjal, that I have read this thing, that it was consumed in China first and then it reached Europe in 16th century. Okay, clear? So now kids, there are two stories according to legends. Okay, so there were दो अलग अलग legends हैं. So हमने discovery of tea की दो अलग अलग stories बताई हैं. So two stories are in your chapter that we are going to discuss, कि दो ऐसी कौन सी stories हैं जो ये बताती हैं कि how the tea was discovered. Okay, so let's check out that what was the story. Okay, so before telling the story, I would like to tell you few more things जो उनके साथ में कंपार्टमेंट में हुई या जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, वो सब चीजों के बारे में। एंड देन आई विल टेल यू द टू स्टोरीज हाउ टी वाज डिस्कवर्ड। ओके, अब बच्चों वहां पे जो वेंडर था वो हाई पिच में चिल्ला रहा था चाय चाय चाय, एज आई हैव टोल्ड यू, और उसने उनको स्टीमिंग हॉट लिक्विड मस्त दिया उनको चाय पीने के लिए। और उनके कंपार्टमेंट जितने लोग थे बाकी सभी लोग चाय पी रहे थे उसी टाइम पे। तभी बच्चों राजवीर ने क्या बोला? राजवीर ने प्रांजल से बोला, do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर ने क्या पूछा प्रांजल से, that do you know 80 crore cups of tea are consumed every day in the world? Do you know this? Okay, View explained exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. अभी प्रांजल क्या बोलता है? ओके, ओ व्यू, दैट मीन्स चाय जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये मुझे तुम्हारे फैक्ट से पता चल रहा है। अगर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी लोग पीते हैं एक दिन में, सो दैट मीन्स चाय जो है एक बहुत ही पॉपुलर बेवरेज है आज के टाइम पे वर्ल्ड में। ये किसने बोला? प्रांजल ने। और तभी राजवीर ने उसको और जो चीजें थी वो बताई, दैट earlier tea was used, first it was discovered in China and then it reached Europe, but in Europe it was used as a medicine. ठीक है, उसके बाद उनकी ट्रेन चल रही थी ठीक है। राजवीर was enjoying the scenic beauty outside. Okay, so he was enjoying the magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of deep tea bushes stretched as far as the eye could see. और जितनी दूर तक राजवीर की नजर जा रही थी उसे वहां पर सिर्फ और सिर्फ टी बुशेस, टी प्लांट्स देखने को मिल रहे थे। ओके, क्लियर? तो जहां तक उसकी नजर जा रही थी ही कुड ओनली एंड ओनली सी टी प्लांट्स। ठीक है, उसके अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर गोइंग टू असम एंड व्हाट एल्स दे कैन एक्सपेक्ट देयर। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो बच्चों इस लाइन में ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सो प्लीज पे अटेंशन। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees. अब जो shade trees हैं जिनसे हमें छांव मिलती है वो पेड़ क्या थे बच्चों? बहुत ही बड़े बड़े थे। ओके, the strongly built trees were really really big. I would like to draw it here.
जो ये ऐसे प्लांट्स थे बच्चों, ये जो स्टडी मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली बिल्ट शेड ट्रीज. ओके, so these trees were strongly built. Okay, so these trees were quite big. Okay, इनके नीचे जो हमारे टी प्लांट्स हैं वो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि दे आर ड्वार्फिंग. ड्वार्फिंग मतलब इनकी हाइट कम हो. जो टी प्लांट्स थे दे वर रियली रियली स्मॉल इन फ्रंट ऑफ द big strong trees. Okay, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures. और इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच में छोटे नीचे नीचे क्या थे, टी प्लांट्स थे, और उनके बीच में राजवीर ने क्या देखा, देयर वर डॉल लाइक फिगर्स. अब ये डॉल लाइक फिगर्स कौन थे बच्चों, डॉल लाइक फिगर रिप्रेजेंट्स दी टी प्लकर्स, जो वहां पे चाय की पत्तियां तोड़ती थी, जो भी men and women, especially women who were plucking the leaves and they were putting it in their basket. तो doll like figures कौन लग रहे थे उनको, tea pluckers. दूर से they were looking like doll like figures. Okay, clear? Doll like figures again, which is the literary device that is used here, that is simile. Okay, because we are comparing two different things and we are using like also. Okay, so is it clear the meaning of this line? Chalo. Now let's see ahead. Here I drink a lot of water because yeah, I take so many classes, so I consume water again and again. So kids, please don't mind. चलो. So now, अब क्या हुआ बच्चों, तो बाहर जो था बहुत ही उनको सुंदर जो है सीनिक ब्यूटी देखने को मिल रही थी. So now I would like to tell you, जो राजवीर ने दो स्टोरीज बताई थी प्रांजल को, that how tea was discovered, that I would like to tell you. Okay. So first story क्या थी बच्चों. So now let's see the first story. Just give me a second. Yes, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. Okay, but there are many legends जिनकी अलग अलग कहानी हमको सुनने को मिलती है. तो राजवीर बोलता है what legends, कौन से legends की बात कर रहे हो तुम. तो वो बोलते हैं एक कहानी ये है, there is the one story is this. There's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. So maybe the Chinese emperor was like me because I also drink, hot water in my cup. You all know, right? So kids, वो Chinese emperor की क्या story थी? What he used to do? This was suppose his vessel, and इसमें he used to boil his water every day. Okay? उसका जो पानी था वो हमेशा बॉईल करवा के ही पीता था, खुद से भी बॉईल करता था, या नौकर चाकर हमेशा बॉईल करके ही देते थे. एंड देन this is the boiling water. Okay, so what he used to do, he always used to boil his water before drinking it. Okay, one day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the pot. Okay, twigs क्या होती है, soft soft जो हमारे plants की वो टहनियां होती है ना, they are known as twigs. डालियां हैं जो branches जिन्हें बोलते हैं. तो जो बच्चों कुछ जो twigs की जो branches की जो कुछ leaves थी, वो गलती से few leaves fell into the pot of the boiling water. Few leaves fell into the boiling water. Okay, तो जैसे ही वो उसके अंदर गिरी, it gave it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. और जब उसको उस Chinese emperor ने taste किया, he really liked it and therefore he started making tea with the same method. So this is the one story that how tea leaves were discovered. So once the Chinese emperor was boiling his water because he used to boil it every day, and then before consuming it, उसको लेने से पहले क्या हुआ बच्चों, गलती से उसमें कुछ लीव्स गिर गई, उसकी वजह से उसका अरोमा चेंज हो गया, एंड उसकी वजह से उनको क्या हुआ, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस भी आने लग गई, एंड द टेस्ट वाज रियली गुड. सो व्हाट ही डिड, द एम्परर देन नेम्ड इट टी लीव्स. ओके, चलो, shall we now see our next story क्या थी. Now Pranjal was also excited to know all these stories. So what he said, tell me the another one. तुम बोल रहे हो और भी legends की story है, so tell me the other story. Okay, चलो. So next story क्या थी बच्चों, that is about a Buddhist monk. Okay, चलो. So let's see what was the story.
We have an Indian legend too. Okay, he was an Indian legend. His name was Bodhidharma. He was an ancient Buddhist ascetic. Okay, अब क्या था बच्चों, वो मेडिटेशन करने की बहुत कोशिश करते थे. he really wanted to do meditation, लेकिन जब भी वो मेडिटेशन करते थे तब उनको यूजुअली नींद आ जाती थी. He was not able to concentrate. Okay, he was not able to do his meditation properly and he used to feel sleepy a lot. और उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा नींद आ जाती थी. He felt sleepy during his meditations. Okay, clear? Now what is the meaning of ascetic? जो यार बच्चों ये हमारे monks होते हैं ना, what they do is they follow self discipline. They follow severe discipline for religious reasons. So that is the meaning of ascetic. Okay, so a person who follows an ascetic life, who follows rules, regulation, discipline for his religious reason. तो वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और वो क्या है, मेडिटेशन करने की कोशिश करते थे. एंड मेडिटेट करते टाइम यूजुअली ही यूज्ड टू फील स्लीपी. तो बच्चों उन्होंने अपनी नींद भगाने के लिए क्या करा, वन डे व्हाट ही डिड, ऑब्वियसली उन्हें गुस्सा आया बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू concentrate. So what he did, he cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditations. और उन्होंने अपना क्या करा, एक बार eyelids जो थी उनको कट कर लिया because he used to feel sleepy. So now quickly let me know in the live chat what is the meaning of eyelids. ठीक है, जल्दी से बताओ. I'll tell you, ये बच्चों सपोज जैसे हमारी आईज हैं, तो जो हमारी आई लैशेज रहती हैं, they are known as eyelids. Okay, ये एक्चुअली क्या होता है, ये तो आई लैशेज हो गई बच्चों, ठीक है. और जो आईलिड्स होती हैं यूजुअली ये इनके नीचे होती हैं आईलिड्स, लैशेज के नीचे होती है, आई गेस. यस, सो यू ऑल्सो लेट मी नो. आप लोगों ने तो यार बायो पढ़ी भी है, आप लोग तो पढ़ भी रहे हो, राइट. मैंने जब चेक किया था तो इसमें आ रहा था ऊपर वाले में अपर आईलिड, नीचे आ रहा था लोअर आईलिड. यू ऑल्सो क्विकली लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईलिड, ओके, इन द लाइव चैट. तो अब क्या हुआ बच्चों, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नींद आती थी उन बुद्धिस्ट मॉन्क को, सो व्हाट ही डिड, ही कट हिज आईलिड्स, ताकि मतलब मुझे नींद आई ना. सो ही जस्ट कट देम एंड ही जस्ट थ्रू देम अवे, ठीक है. और जहां उन्होंने अपनी आईलिड्स फेंकी थी, तो ऐसा हमारे इंडियन लेजेंड का मानना है कि जहां उन्होंने अपनी आईलिड्स फेंकी थी वहां पे 10 अलग अलग पौधे उग गए थे उनकी आईलिड्स में से. सपोज उन्होंने यहाँ पे फेंकी, जहां जहां उन्होंने फेंकी वहां पे डिफरेंट डिफरेंट 10 जो थे ट्रीज उग गए, जहां जहां उन्होंने अपनी आईलिड्स को फेंका था. वेयर ही थ्रू हिज आईलिड्स 10 डिफरेंट ट्री प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स. ओके, और तब माना जाता है कि उसके बाद से जितने भी लोगों ने उस प्लांट्स की लीव्स को तोड़कर हॉट वाटर में डालकर पिया, तो उनकी नींद जो थी उसके बाद से उड़ गई. तो ये हमारी इंडियन लेजेंड की स्टोरी है. दैट अ बुद्धिस्ट मॉन्क यूज्ड टू फील स्लीपी एंड देयरफॉर ही कट हिज आईलिड्स एंड ही थ्रू देम अवे. एंड यू नो व्हेन ही थ्रू इट अवे, उसके बाद से जब लोगों ने उसकी लीव्स को तोड़कर हॉट वाटर में डाल के पीना स्टार्ट किया, तब से लोगों की उसके बाद से नींद उड़ जाती है उसको पीने के बाद से. ओके, ओके, सो दीज वर द टू स्टोरीज. अब देखते हैं राजवीर और क्या बताता है प्रांजल को. सो Rajveer then added as far back as 2700 BC. In fact, जो मैंने पढ़ा है उसके according तो the words chai and chini are also extracted from चाइनीज लैंग्वेज ओनली. ये भी जो चाय और चीनी वर्ड्स हैं ये भी कहाँ से आए हैं, चाइना से ही आए हैं, और ये चाइनीज लैंग्वेज के ही वर्ड्स हैं. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as a beverage. अब तो हम एज अ ड्रिंक पीने लग गए, एज अ ड्रिंक उसे एंजॉय करने लग गए, बट पहले वो यूरोप में 16th सेंचुरी में एज अ मेडिसिन ही कंज्यूम की जाती थी. ठीक है, अभी वो बातें बातें करते रहते हैं बच्चों. अब क्या है, वो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन. नाउ मेरियानी जंक्शन was the station where they were supposed to reach. ठीक है, तो अब जो है प्रांजल के फादर जो थे वो उनको मेरियानी जंक्शन पे लेने आने वाले थे. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैटर? क्लैटर मतलब वो रैटलिंग साउंड आती है ना जो ट्रेन की जब वो रुकती है,
तो वो क्लैटरिंग साउंड आई और मिरियानी जंक्शन वो लोग पहुंच चुके थे. ओके, अब बॉयज ने अपना लगेज कलेक्ट किया एंड दे पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. वहां बहुत भीड़ थी. प्रांजल's पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम. प्रांजल के पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे. नाउ दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेकियाबाड़ी. नाउ व्हाट वाज धेकियाबाड़ी? धेकियाबाड़ी क्या था? धेकियाबाड़ी was the tea garden that was managed by प्रांजल's father. धेकियाबाड़ी क्या था बच्चों? उस टी गार्डन का नाम था जिसके मैनेजर कौन थे? प्रांजल के फादर. और 1 घंटे बाद, ठीक है, जब वो लोग वहां पर, एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड. 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट वो ट्रैफिक से, भीड़ भाड़ से बाहर आ गए. और जब बाहर आए तो उनको क्या दिखा? दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड धेकियाबाड़ी टी स्टेट. और कैटल वगैरह बहुत ज्यादा थी उस ब्रिज पे, सो दे क्रॉस्ड इट और फिर वो टी गार्डन की तरफ पहुंचे. ठीक है, all neatly pruned, okay, sorry, on both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. और दोनों तरफ ऐसे उन्हें, ये बीच में ये है और साइड में सिर्फ सिर्फ क्या नजर आ रहे थे? राजवीर कैन ओनली एंड ओनली सी so many tea bushes of the same height and they were neatly cut. सबकी हाइट जो थी वो एक तरीके से मेंटेन थी. इट वॉज नॉट लुकिंग बैड एट ऑल. और वहां पे ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स थे जो चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे. दे हैड बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, वैसे सर पे से पहनते. एंड दे वर वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स. एप्रन्स क्या होते हैं बच्चों? जो हमारी मम्मा पहनती है ना खाना बनाते वक्त टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम ऑल द ऑयल एंड फ्लावर. तो जो मम्मा पहनती है घर पे, वैसे ही उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे टू टू प्रोटेक्ट देयर क्लोथ्स. ओके, और वो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे. ठीक है, और क्योंकि जब वो लोग वहां जा रहे थे तो प्रांजल के फादर को क्या देखने को मिला? प्रांजल्स फादर slowed down to allow a tractor that was pulling a trailer load of tea leaves. Okay, अब जब वो उसमें ट्रेलर में टी लीव्स को भर देते थे, उसके लिए उनको एक ट्रैक्टर चाहिए रहता था उसको खींचने के लिए, क्योंकि वो इतना भारी हो जाता था. जब भी हम ऑब्वियसली किसी बास्केट में, किसी ट्रेलर्स में टी लीव्स को भर देंगे, इतनी सारी टी लीव्स होंगी, सो ऑब्वियसली इट वुड बी टू हैवी टू पुश इट. सो वहां पे एक ट्रेलर था जो उसको पुल कर रहा था. तभी क्या पूछता है राजवीर मिस्टर बरुआ से? हु वाज मिस्टर बरुआ? मिस्टर बरुआ वाज राजवीर्स फादर. और वो क्या बोलता है? दिस इज द सेकंड फ्लश, और दिस इज द सेकंड फ्लश. सेकेंड फ्लश, तो सेकेंड फ्लश लीव्स कौन सी होती है बच्चों? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड येस इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टी, क्योंकि इसका जो अरोमा होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. और ये टी लीव्स यूजुअली मई से लेके जुलाई तक देखने को मिलती है. इस टाइम पे उगती हैं ये मई से जुलाई तक. इसका अरोमा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टी. ओके, तभी प्रांजल के पापा क्या बोलते हैं? लगता है कि बेटा राजवीर तुम बहुत होमवर्क कर कर आए हो यहाँ पे आने से पहले, तभी तुम्हें सेकेंड फ्लश लीव्स के बारे में या स्प्राउटिंग पीरियड के बारे में इतनी नॉलेज है. ठीक है, तभी राजवीर क्या बोलता है? यस मिस्टर बरुआ, मैं बहुत होमवर्क करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर. बट क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं आपसे और यहाँ पे सब कुछ देखकर और चीजें भी सीखना चाहता हूँ. यस आई हैव डन माई होमवर्क बट आई वॉन्टेड टू लर्न मोर. ओके, chalo, so thank you so much kids. This was all about the chapter. If you were able to understand the chapter, then please like the video and subscribe to our channel, that is Let's Crack 9th and 10th CBSE. Kids, if you are not following me yet, then please download the Unacademy learning app, search my name, that is Divya Chandwani, and start following me from today only, so you will get notification about my special classes also. ठीक है, my schedule is 5:30 p.m. on YouTube and 9:30 p.m. on Unacademy app, that is daily. तो YouTube पे मेरी 5:30 पे क्लास होती है and 9:30 p.m. पे डेली मेरी स्पेशल क्लास होती है. So do join me in my special classes also for some fantastic and interesting quizzes. Okay, and do not forget to use this awesome referral code, that is Divya10. Use this code to get an instant discount of 10%. Okay, chalo. So bye bye kids, sayonara. I'll see you all in my special class. Bye bye. Tara, take care, stay home, stay safe.